So hi everyone, how are you? How's the preparation going? So let's quickly revise and learn the topic of audit program today because this is one of the topic where you can expect the question from ICA in the form of maybe 4 to 5 marks, and we cannot afford to lose the marks where we have such direct topics in our syllabus. So let's quickly learn the topic today in the class itself, and don't forget to subscribe to my channel, which is very important. And if you want these notes, I can share these notes with you over the Telegram channel, that the audit with the CA Nidhi Kalra. So there you can find these notes, right? So the audit program. What is basically an audit program is? So audit program is basically a list of examination and verification steps, right? So what is the audit program? So it is the list है, किस चीज की लिस्ट है? List of examination and verification steps to be applied and set out in such a way that the interrelationship of one step to another is clearly shown and designed, keeping in view the assertions at the financial statement level or the accounting records of the client. ठीक है? So basically अगर मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करूं तो आपने ऑडिट करना है, आपको किसी क्लाइंट का ऑडिट आया है, नाउ यू हैव टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स and now you have to perform the audit of that particular client, that particular financial statements. उसमें हमने देखा था कि बहुत सारी financial statements में balance sheet items में we have different assertions, P&L items में we have different assertions. तो कौन कौन से steps you will going to perform while you verify those financial statements and while you verify those assertions at the financial statement level, that is the balance sheet level, or the accounting records of the client. तो ऑडिट प्रोग्राम में यू हैव टू मेक इट ए रिटन प्रोग्राम जहां पे आपको लिखना है कि क्या क्या आप स्टेप्स करोगे, अ लिस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स. क्या करोगे आप उसको? पहला तो आपको कीवर्ड याद करना है, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड द वेरिफिकेशन स्टेप्स. अब आपको वो कहाँ पे अप्लाई करने हैं? टू बी अप्लाइड. ठीक है, अभी फ्यूचर में आपने अप्लाई करनी है तो टू बी अप्लाइड एंड सेट आउट. इस तरीके से आप उसको लिस्ट करोगे दैट द इंटर रिलेशनशिप ऑफ वन स्टेप टू अनदर इज क्लियरली शोन एंड डिजाइंड. मतलब आपको स्टेप्स में दिखाना पड़ेगा कि इसका अगर मैं पीपीई का मुझे अगर ऑडिट करना है तो उसके आपके कौन कौन से स्टेप्स, एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स, और उसका इंटर रिलेशनशिप भी आप दिखाओगे उसी ऑडिट प्रोग्राम में, कीपिंग इन व्यू द असर्शंस, व्हाट आर द एक्सर्शंस, मे बी अकरेंस, मे बी कंप्लीटनेस, मे बी एक्यूरेसी, whatever the assertions, keeping in view the assertions at the financial statement level or the accounting records of the client. मतलब कि आप जो प्रोसीजर्स करते हो, अल्टीमेटली ऑडिटर को क्या करना होता है? ऑडिटर को जो आपका एविडेंस लेना होता है वो आपको एविडेंस लेना होता है अपनी असर्शंस को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए कि मेरी असर्शंस जो मैनेजमेंट कहता है कि हमने एग्जिस्टेंस के बेसिस पे ये करा है, हमने वैल्यूएशन के बेसिस पे हमने पीपी को इस तरीके से वैल्यू करा है. सो व्हाट स्टेप्स एज एन ऑडिटर यू विल फॉलो टू कीप इन माइंड कि अच्छा ये जिस असर्शंस पे फाइनेंशियल्स बने हैं दे आर ट्रू, एंड फॉर दैट थिंग you have to at any cost perform some steps, some list of the examination. So audit program में आपको वो list देनी है. समझ में आया? Are you able to learn this now? What is the first keyword? The first keyword is the list of examination and the verification steps. कहाँ पे करना है? इन फ्यूचर में करना है तो to be applied and set out in such a way that the interrelationship किसका? एक स्टेप का किससे another स्टेप से is clearly shown and designed, keeping in view the assertions at the financial statement level or the accounting records of the client. What you can do, you can split this definition in some parts. First part is audit program को तो हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं. अब वो क्या चीज है? एक लिस्ट है. किस चीज की लिस्ट है? ठीक है, किस चीज की लिस्ट है? एग्जामिनेशन की लिस्ट है या फिर वेरिफिकेशन स्टेप्स की लिस्ट है. बात हो गई यहाँ पे खत्म. वन पार्ट इज ओवर. नेक्स्ट पार्ट इज क्या है? वो बहुत ही फ्रेमिंग सेंटेंस के लिए कहाँ पे हमने अप्लाई करना है? टू बी अप्लाइड एंड सेट आउट इन सच अ वे. दिस इज अ वेरी नॉर्मल लाइन विच यू कैन फ्रेम ऑन इट ऑन योर ओन. एंड किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो रिलेशनशिप है एक स्टेप का, जो मेरा यहाँ पे हमने स्टेप्स लिखे हैं उसका जो रिलेशनशिप है फर्स्ट स्टेप का, दैट इज क्लियरली डिपिक्टेबल, शोन एंड डिजाइन, कीपिंग इन व्यू द असर्शंस एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. अगर मैं फ्रेमिंग को हटा दूं, इफ आई टॉक अबाउट जस्ट कीवर्ड्स, तो फर्स्ट कीवर्ड इज लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड द वेरिफिकेशन स्टेप. सेकंड इज इंटर रिलेशनशिप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. थर्ड इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की असर्शंस. तो थ्री कीवर्ड्स आर हियर. राइट इट डाउन, नोट करो उसको कि लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप. सेकंड इज इंटर रिलेशनशिप. थर्ड इज कीपिंग इन व्यू द असर्शंस एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द क्लाइंट. तो ये ना आपको नींद में भी लर्न होना चाहिए कि ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है. आगे पीछे का इज जस्ट फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस, बट द मेजर कीवर्ड्स आर जो मैंने आपको बता दिए. ठीक है,
अब आप खुद सोचो, सारे क्लाइंट्स एक जैसे नहीं होते, सारी इंडस्ट्री एक जैसी नहीं होती, सबका बिजनेस एक तरीके का नहीं होता, तो वी कैन नॉट हैव ओनली वन प्रोग्राम फॉर एवरी बिजनेस। इज इट मेकिंग सम सेंस टू यू कि हम ऑडिट प्रोग्राम जो है वो हम एक ही बिजनेस का तो सब में नहीं लगा सकते कि अच्छा आज मेरा बिजनेस टीचिंग का है तो मैं टीचिंग का जो ऑडिट प्रोग्राम है कोई मेरा ऑडिट करने आएगा तो उसका मे बी अलग ऑडिट प्रोग्राम होगा, कोई स्टील इंडस्ट्री में है तो उसका ऑडिट प्रोग्राम मे बी अलग होगा, बिकॉज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द बिजनेस दैट वी पीपल आर डूइंग। मेरे लिए मटीरियलिटी कुछ और है, मेरे लिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज कुछ और है, मेरी मटीरियलिटी बिकॉज कुछ और है, तो मेरा ऑडिट प्रोग्राम उसको रिस्पेक्ट में रखते हुए मेरा बनेगा ऑडिट प्रोग्राम। द ऑडिटर विल कीप इन माइंड सर्टेन फैक्टर्स एंड देन दे विल फ्रेम द ऑडिट प्रोग्राम, राइट। एंड अगर कोई स्टील इंडस्ट्री है या कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या कोई ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, उनके लिए मटीरियलिटी कुछ और होगी, उनके लिए इंपॉर्टेंट एरियाज कुछ और होंगे, उनके लिए ऑडिट के सिग्निफिकेंट एरियाज कुछ और होंगे। तो ऑडिट प्रोग्राम को हमको देख के बनाना है कि हमें कैसा ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। दिस इज वेरी कॉमन सेंस जो आपको समझ में आ रही होगी अभी। तो उसमें लिखा है कि वर्क विच इज सुटेबल टू वन बिजनेस में नॉट बी सुटेबल टू अदर्स। दिस इज वेरी ट्रू, ठीक है। अब मैं आपको कल आईसीआई की इसमें क्वेश्चंस दिखाऊंगी जहां पे ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि एक ही ऑडिट प्रोग्राम है वो ही सुटेबल होता है सारे बिजनेस के लिए। इज द स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? विच इज नॉट। एंड आपको अगर इसको अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यू कैन इजिली स्कोर द मार्क्स इन देम, राइट। So the first is it is not suitable to all the business, and business क्यों नहीं suitable? Because business may vary in the nature, in their size, in their composition. You can write it down the example कि अगर कोई steel industry है तो उसका अलग होगा, कोई manufacturing industry है तो उसका अलग होगा, कोई ट्रेडिंग इंडस्ट्री है तो उसका अलग होगा। सो वी हैव डिफरेंट बिजनेस एंड दोज बिजनेसेस दे वेरी इन देयर साइज, दे वेरी इन देयर कंपोजिशन, दे वेरी इन देयर नेचर, ठीक है। सो दे आर नॉट, सो ये दो ना आप इसको इंटररिलेट कर लो। क्या इंटररिलेट करना है? वर्क विच इज सुटेबल टू वन बिजनेस में नॉट बी सुटेबल टू अदर्स। क्यों? बिकॉज दे वेरी इन देयर साइज, दे वेरी इन देयर कंपोजिशन, दे वेरी इन देयर नेचर। अच्छा, अब डिफरेंट बिजनेस के डिफरेंट इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, उसका ऑपरेशन डिफरेंट तरीके से होता है, उसकी एफिशिएंसी डिफरेंट तरीके से होती है, ठीक है। सो एफिशिएंसी एंड द ऑपरेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल दे आल्सो मे वेरी, बिकॉज जब बिजनेस ही सेम नहीं है तो सबके इंटरनल कंट्रोल्स भी डिफरेंटली ऑपरेट कर रहे होंगे। समझ में आया? एंड द नेचर ऑफ द सर्विसेज टू बी रेंडर्ड बाय द ऑडिटर एट द अदर फैक्टर्स दैट वेरी फ्रॉम असाइनमेंट टू असाइनमेंट, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ सच वेरिएशंस इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल टू ऑल द बिजनेस अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस इज नॉट प्रैक्टिकेबल। बिकॉज ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में भी आ सकता है, ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है। आपको इसको 4 पॉइंट याद करने हैं। 2 पॉइंट तो बड़े सिंपल से हैं कि भाई हमारा बिजनेस अलग है, दूसरे का बिजनेस अलग है। किस में अलग है? नेचर, साइज एंड कंपोजिशन में है। फिर हमारे पास आता है कि जो भी हमारे पास इंटरनल कंट्रोल्स हैं, एफिशिएंसी एंड ऑपरेशंस है, वो अलग अलग है। इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पे ही आपको फर्दर प्रोसीजर जो होते हैं वो डिसाइड करने पड़ते हैं। लाइक आई टोल्ड यू इन द ऑडिट एविडेंस वाला चैप्टर भी कि डिपेंडिंग अपॉन द एफिशिएंसी एंड द इफेक्टिवनेस बाय व्हिच द इंटरनल कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग, यू नीड टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ द सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। गॉट माय पॉइंट? अब उसकी ऑपरेशंस डिफरेंट, बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल डिफरेंट है, उनकी ऑपरेशंस डिफरेंट है, उनकी एफिशिएंसी डिफरेंस है, और मैं किस तरीके की सर्विस देने वाली हूँ एज एन ऑडिटर, ठीक है। दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन बिजनेस टू बिजनेस। मे बी मैं आपको बोलूं कि यार इस वाले उसमें मेरे को ये मेरा स्कोप है, इन एरियाज का मैं ऑडिट करूंगी, ये मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी। मे बी मैं सेकंड बिजनेस में उतना मेरा स्कोप ऑफ वर्क नहीं है। सो वी कैन नॉट फ्रेम एनी वन ऑडिट प्रोग्राम। आर यू क्लियर नाउ? First is work is which is suitable for one business is not suitable. Why? Because nature, size and compositions are different. Third is कि जब हमने business देख लिया तो internal controls are very much different, efficiency is very much different, and the nature of the services to be rendered by the auditor are the another factors that may vary from assignment to assignment. ठीक है, समझ में आया? And the next thing is the assistant to keep an open mind. ठीक है, तो अब क्या करना है आपको कि सपोज करो ऑडिटर, जो भी ऑडिटर है उसने अपने नेचर को, साइज को एंड कंपोजिशन को या डिपेंडेबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल को ऑल्सो गिवन द स्कोप ऑफ वर्क शुड फ्रेम वन प्रोग्राम एसेंशियल वर्क। कि आप जैसे होता है ना कि अगर हम कभी भी कुछ कर रहे होते हैं तो हम उसमें एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि बेसिक है, मतलब दिस तो हैज टू बी देयर। तो वन थिंग इज द स्टैंडर्ड प्रोग्राम, जो कि आपको लगता है कि बहुत बेसिक है यार, इतना पार्ट तो इंक्लूड हम प्रोग्राम में करना ही चाहिए। किसको माइंड में रखते हुए? आपके नेचर को, आपकी कंपोजिशन को, आपके साइज को। नेचर, कंपोजिशन, साइज एंड इंटरनल कंट्रोल के ऊपर डिपेंडेबिलिटी कितनी रहने वाली है, ठीक है, एंड आपका स्कोप ऑफ वर्क। सो हाउ यू कैन लर्न दिस थिंग्स? जितनी चीजें हमने ऊपर याद करी थी कि हमारा ऑडिट प्रोग्राम किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर, साइज, कंपोजिशन, इंटरनल कंट्रोल, नेचर ऑफ सर्विस, है ना।
तो स्कोप ऑफ वर्क इज एक्चुअली द नेचर ऑफ द सर्विस। तो उसके बेसिस पे हम एक छोटा सा मिनिमम तो एसेंशियल वर्क स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको एक ओपन माइंड रखना है कि एज एक्सपीरियंस इज गेन्ड, जो जो हमको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, प्रोग्राम मे बी ऑल्टर्ड एंड असिस्टेंट शुड बी एनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड। आप रिजिड नहीं हो सकते कि अच्छा मैंने तो ये प्रोग्राम बना लिया तो यही प्रोग्राम रहेगा थ्रू आउट द ऑडिट। यू कैन नॉट डू लाइक दैट। आपने क्या करना है कि यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड कि जो भी मुझे आगे आगे की नॉलेज मिलती जाएगी, आई हैव टू ऑल्टर माई ऑडिट प्लान एंड असिस्टेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड। असिस्टेंट मतलब जो भी आपका स्टाफ काम कर रहा है, शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू नोट एंड रिपोर्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स टू द सीनियर्स। इन केस अगर आपको मेरे को सपोज पीपी का एरिया मिला थ्रू माय सीनियर, तो अगर मेरे को कोई फर्दर डेवलपमेंट होती है या मुझे कुछ ऐसा लगता है कि यार पीपी में ये वाला एक्विजिशन हुआ है या ये वाला डिस्पोजल हुआ है जिसके लिए मुझे अलग से टेस्टिंग करनी पड़ेगी या मुझे डिप्रिसिएशन की अलग से टेस्टिंग करनी पड़ेगी, सो इफ देयर इज एनी सिग्निफिकेंट मैटर दैट इन माय व्यू इज इंपॉर्टेंट, सो आई हैव टू रिपोर्ट इट टू माय सीनियर्स। समझ में आया कि क्या आपको ओपन माइंड में रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम। ऑन व्हाट बेसिस यू हैव टू मेक अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम? ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर एंड द साइज एंड द कंपोजिशन। सेकंड इज डिपेंडेबिलिटी ऑन द इंटरनल कंट्रोल। थर्ड इज आपका जो स्कोप ऑफ वर्क है, सो यू हैव टू मेंटेन अ स्टैंडर्ड वर्क प्रोग्राम। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन करा थ्रू आउट द ऑडिट, तो कीप एन ओपन माइंड एंड इन केस यू फील लाइक दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज द थिंग दैट आई हैव टू रिपोर्ट टू माई सीनियर, प्लीज गो एंड रिपोर्ट टू दैट सीनियर। Are you able to learn these three things now? First is audit program. So what is audit program? There are three steps in which we have bifurcated the three important lines. First is it is a list of the examination and the verification steps. और उसके बाद जो भी आपने स्टेप्स लगाए, they should be able to show the interrelationship of one step with another. थर्ड इज क्या आपको व्यू पॉइंट में रखना है, कीपिंग इन व्यू द असर्शंस एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द क्लाइंट। समझ में आया? सेकंड इज इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम। इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू होल्ड द एवरी ऑडिट प्रोग्राम फॉर ऑल द बिजनेस। वाई? बिकॉज बिजनेस का नेचर बहुत अलग अलग है, ठीक है। वर्क ऑफ द वन बिजनेस में नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर। नेचर, साइज, कंपोजिशन आर डिफरेंट। एफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स एंड देयर ऑपरेशंस आर डिफरेंट। एंड मेरा स्कोप ऑफ वर्क, द टाइप ऑफ द सर्विसेज व्हिच आई एम एज एन ऑडिटर इज बाउंड टू गिव इज आल्सो डिफरेंट। एंड आपको अब असिस्टेंट को क्या करना है, एक ओपन माइंड रखना है। किस तरीके का ओपन माइंड रखना है आपको कि मेरा जो नेचर, साइज, अगेन वही वाला, उसके बेसिस पे मुझे एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनाना है। दैट स्टैंडर्ड प्रोग्राम कैन बी ऑल्टर्ड, MCQ can be altered. If there is something very specific, please report to your senior. ठीक है? So this is very easy. अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे ना, so this is like very easy thing which you can really learn while doing the audit. ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर आपने सपोज एक ऑडिट प्रोग्राम मैंने आज बना लिया, तो इज इट समथिंग कि हाँ यार ये तो मेरा बन गया, अब इसको मैं कभी रिव्यू भी नहीं करूंगी, या अगर इसमें मैं कोई चेंज भी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज इट इज नॉट इवन प्रैक्टिकेबल। बिकॉज अगर आप ऑडिट प्रैक्टिकली करोगे ना, तो देयर आर सो मेनी चेंजेस एंड सो मेनी डेवलपमेंट्स व्हाइल यू परफॉर्म द ऑडिट। एंड आपका जो ऑडिट प्रोग्राम बनता है वो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे बन जाता है। तो यू हैव टू ऑल्टर योर ऑडिट प्रोग्राम। यू हैव टू बेसिकली रिव्यू द ऑडिट प्रोग्राम कि जो भी मैंने ऑडिट प्रोग्राम करा है, जो भी मैंने ऑडिट प्रोग्राम बनाया है, इसका मैं पीरियोडिकली रिव्यू करूं। सो पीरियोडिक रिव्यू क्यों करना है? टू असेस, टू मेजर वेदर द सेम कंटिन्यूज टू बी एडवोकेट फॉर ऑब्टेनिंग द रिक्विजिट नॉलेज एंड एविडेंस अबाउट द ट्रांजैक्शंस। कि अगर सपोज करो कि मैंने आज पीपीई के 10 प्रोसीजर्स लिख दिए कि यार मुझे लगता है कि वेरिफिकेशन स्टेप्स में पीपीई के ये 10 प्रोसीजर्स मुझे पेन डाउन करने इन माय ऑडिट प्रोग्राम। सो इज इट सफिशिएंट? When you are reviewing your audit program again, so you have to measure, you have to assess whether the same continues to be advocate. अगर वो advocate है, are there sufficient steps which I have written for the PP for obtaining what you are obtaining? You are obtaining the knowledge and the evidence about the transactions. आपने क्यों steps लिखे हैं? आपने क्यों लिखा है कि मेरे को डेटर्स की एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए? बिकॉज यू हैव टू obtain an evidence for the debtors, right? So are the steps advocate? Are the steps sufficient for the debtors which you have written in the audit program? First of all, you have to review this thing. Unless this is done, अगर ये आप नहीं करोगे, any change in the business policy of the client may not be advocately known and consequently audit work may be carried out based on an obsolete program. And for this negligence, the whole audit may held as negligently conducted and the auditor may have to face the legal consequences.
सो दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट थिंग, पता है, क्योंकि अगर आपने सपोज करो आप अननोइंगली या नोइंगली आप चीजें अवॉइड कर रहे हो, यू आर नॉट इनकॉर्पोरेटिंग द अपडेशंस इन योर ऑडिट प्रोग्राम, मे बी कोई नई बिजनेस पॉलिसीज आ गई हैं, मे बी क्लाइंट ने कुछ अलग से दिखाया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एफआरएफ, या ठीक है, तो अगर आप उसको अपने ऑडिट प्रोग्राम में अपडेट नहीं करोगे एंड यू आर कंटिन्यू टू कैरी आउट योर ऑडिट बेस्ड ऑन द ऑब्सोलीट प्रोग्राम, ठीक है, तो आपको क्या कर सकते हैं, आप पूरा ऑडिट नेग्लिजेंट तरीके से कर रहे हो, यू आर नॉट कंडक्टिंग इट थ्रू योर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म माइंड, यू आर जस्ट कंडक्टिंग इट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द ऑडिट नेग्लिजेंटली. Negligently is something not unintentional, this is something intentional, negligence हो रहा है, and the auditor may have to face the legal consequences for the same. ठीक है, utility of the audit program can be retained and enhanced only by keeping the program as also the client's operations and internal controls under periodic review, so that जो भी आपकी inadequacies और redundancies है may be removed. So you have to update and enhance depending upon the client's operations and internal controls, so that जो भी irregularities आ रही हैं वो आपकी वहीं पे खत्म हो जाएं. So long as the program is not officially changed by the principal, every assistant should unfailingly carry out the detailed work according to the instructions governing the work. So that is why the periodic review of the audit program is very much important. First of all, आपको assess करना है कि जो भी आपने steps लिखे हैं, जो भी आपने advocate है, वो किसके लिए, for obtaining the knowledge, for the obtaining the evidence about the transaction. Unless this is done, if you are not updating it, ठीक है, so you are continuing your audit on the basis of the obsolete program. Obsolete program is the keyword, and that is why, what is the next keyword, that you are negligently carrying out the audit, and उसके बाद next keyword, that auditor may have to face the legal consequences, right? फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यूटिलिटी मतलब यूसेज किस चीज का, ऑडिट प्रोग्राम का. आपकी अगर कोई चीज आउटडेटेड है, यू वोंट बी एबल टू यूज इट, आपको लगेगा इसकी यूटिलिटी अब खत्म हो गई है. तो यूटिलिटी ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम कैसे आप मेंटेन एंड एनहांस कर सकते हो, बाय कीपिंग द प्रोग्राम एज पर द क्लाइंट्स ऑपरेशंस, एज पर द क्लाइंट्स कंट्रोल. इससे आपको क्या मिलेगा, यू हैव टू रिमूव द इनएडवोकेसीज एंड रिडंडेंसीज ऑफ द प्रोग्राम में बी रिमूव्ड. लास्ट में अगर ये ऑफिशियली चेंज नहीं हुआ, तो जो भी आपके असिस्टेंट्स हैं वो आपका अनफेलिंगली कैरी आउट करेंगे डिटेल वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गवर्निंग द वर्क, विच इज नॉट फिजिबल, विच इज नॉट इवन प्रैक्टिकल, विच इज नॉट समथिंग विच इज गुड. क्योंकि आपने ऑडिट प्रोग्राम फिर बनाया ही क्यों है, आप उसकी यूटिलिटी तो रिटेन करो. आप उस जिस पर्पज से आपने ऑडिट प्रोग्राम को बनाया, यू हैव टू चेक दैट थिंग कि वो जिस पर्पज से मेरा ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ है, am I able to conduct my audit according to that thing? That is why we are preparing the program, no? So these are the things, these are the 4 topics which we have covered. The first is the definition of the audit, second is audit program is not feasible for all the business, and you have to maintain an open mind, and then you have to keep on reviewing the audit program, right? अब उसके बाद आपने क्या करना है, ऑडिट प्रोग्राम. आप ऑडिट प्रोग्राम क्यों बनाते हो, ठीक है, तो ऑडिट एविडेंस जो हमारे पास होता है, इसको ना हम वी कैन कवर दिस थिंग लेटर ऑन. पहले मैं आपको एक दूसरा टॉपिक बनाती हूँ कि जब आप एक ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो तो व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू कंसिडर इन योर माइंड. क्या सोचोगे यार आप जब आप एक ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे. तो ऑडिट प्रोग्राम प्लानिंग एंड रिलेटेड प्रोग्राम कमेंसेस व्हेन इट इज कमेंसेस, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्लानिंग के फैक्टर्स के टाइम, या हमने स्ट्रैटेजी के टाइम पढ़ा था कि आपका जैसे ही प्रीवियस ऑडिट खत्म हो जाता है, ये आपकी चीजें कमेंस होनी शुरू हो जाती हैं, एंड शुड बी रिकंसिडर फॉर वेरिफिकेशन. अब आपको कौन कौन सी कंसिडरेशंस को इसमें रखना है दिमाग में व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टेड एन ऑडिट प्रोग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, कि मेरे इंटरनल कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है, कितना मुझे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को कैरी आउट करना पड़ेगा, यू हैव टू चेक दैट फर्स्ट. Second is the preliminary evaluation which we have covered in the last lecture. If you have not seen the last lecture, please go back and check out the last lecture. There you will get a fair idea. Results of the compliance procedures, that is TOC, and the substantive procedures. So these are certain things which we have to keep in mind while we design an audit program. So while developing an audit program may conclude that on the basis of the reliance of the internal controls are an effective or efficient way to conduct its audit, या फिर वो ये भी कर सकता है may also decide not to rely on this, ठीक है, और वो कोई क्या कर सकता है, एफिशिएंट वे ढूंढ सकता है. किस चीज का एफिशिएंट वे ढूंढ सकता है, फॉर obtaining the sufficient and appropriate audit evidences. Further, the auditor normally has the flexibility in deciding when to perform the audit procedures. However, in some cases may have no discretion as to the timings.
ठीक है। तो आपको कंस्ट्रक्ट जब आप करते हो एक ऑडिट प्रोग्राम को, सो व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कमेंस इट एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एंड शुड बी रिकंसिडर फॉर मॉडिफिकेशन। क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी, प्रिलिमिनरी आपकी इवैल्यूएशंस क्या आई हैं, और जो भी आपकी रिजल्ट्स हैं किसके कंप्लायंस प्रोसीजर्स के, आप उनको ध्यान में रखते हुए एक आप ऑडिट प्रोग्राम बना दो। नाउ यू कैन ईदर रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, और यू कैन नॉट रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल। आप अपने ऑडिट प्रोग्राम में लिख दो कि अच्छा ठीक है यार, मेरे सर्टेन इंटरनल कंट्रोल्स ऐसे हैं विच आई थिंक आर एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे टू कंडक्ट हिज ऑडिट। सेकंड पे आप लिख दो कि यार मेरे को लगता है कि इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट एफिशिएंट वे, वी हैव टू फाइंड आउट सम अदर वेज टू फाइंड आउट द ऑडिट एविडेंसेस। आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने कब ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है, किस टाइम पे ऑडिट को प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है। एट सम टाइम यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, इन सम केसेस यू डोंट हैव। तो फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। व्हाट ऑल पॉइंट्स यू हैव टू केप्ट इन माइंड व्हाइल यू डिजाइन द इंटरनल, व्हाइल यू डिजाइन द ऑडिट प्रोग्राम। पहला तो है जितना आपका स्कोप है ना ऑडिट का, अगर आपको लगता है कि आपने इस एरियाज का ये मेरा स्कोप है, बिकॉज व्हेन वी as an auditor, when we talk with the client at the first at the first start, then at that time we decide our scope कि मेरा स्कोप कितना है, मेरे को इस एंगेजमेंट पे क्या क्या काम करना है, मेरे को इस एंगेजमेंट में क्या क्या लिमिटेशंस हैं विच आई हैव टू फॉलो। इससे ज्यादा मेरे को एक्सेस नहीं है इन सब चीजों का। तो जो आप ऑडिट प्रोग्राम है एटलीस्ट दैट शुड स्टे विद इन दैट लिमिटेशन विच इज फेयर इनफ, कि अगर मेरे को आज कोई बोलेगा कि तुझे यहाँ पे ऑडिट में ये पढ़ाना है, तो ऑब्वियसली मैं ऑडिट के ये एरियाज पढ़ाऊंगी। आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। Similarly, I cannot go beyond audit even. I cannot go beyond my certain topics. So this is something which auditor has to keep in mind while he design the audit program, कि आपको कौन कौन से limitations हैं या कौन कौन से आपका scope है। सेकेंड में आपको देखना है कि इट शुड बी द रिटन ऑडिट प्रोग्राम डिस्क्राइबिंग द प्रोसीजर्स दैट आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट द ऑडिट प्रोग्राम। इट कैन नॉट बी ओरल, इट हैज टू बी रिटन ऑडिट प्रोग्राम। थर्ड में आपको देखना है कि डिटरमाइन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस फॉर डिराइविंग द नेसेसरी सेटिस्फैक्शन। Apply only useful steps and procedures in accomplishing the verification purpose. Include the audit objectives for each area. Consider all possibilities of error. Coordinate the procedures to be applied to the related items. Let's take this out one by one. First is मेरा जो होना चाहिए that should be within my scope. Second, it should be the written audit program. I hope this is clear. अब आपने क्या करना है, आपने कोई यूजफुल स्टेप्स देखने हैं, मतलब कि अप्लाई ओनली द यूजफुल स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स इन अकम्प्लिशिंग द वेरिफिकेशन पर्पस। कि ऐसा तो नहीं मैं कोई भी स्टेप्स लिख दूंगी, अगर मुझे लगता है कि यार मेरे को डेटर के ये वाला मुझे ऑडिट एविडेंस चाहिए, तो आई कैन नॉट राइट ईच एंड एवरी प्रोसीजर। आई विल ओनली राइट द रेलिवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स एंड द यूजफुल ऑडिट प्रोसीजर, जो मैं अपने असिस्टेंट्स को दूंगी कि जाओ जाके ये वाले प्रोसीजर्स यूजफुल प्रोसीजर्स हैं ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए करके आओ। ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच एरिया, मतलब सपोज करो अगर मैं आज की डेट में करंट लाइबिलिटीज का ऑडिट करती हूँ, तो आई हैव टू मेंशन द ऑब्जेक्टिव दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइंड व्हाइल आई परफॉर्म द प्रोसीजर्स फॉर दिस एरिया। वो तो ठीक है कि आपको एक ऑडिट एविडेंस चाहिए, उस ऑडिट एविडेंस पे आप एक ओपिनियन फ्रेम करोगे, आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, बट स्टिल आई हैव टू बाइफरकेट सर्टेन ऑब्जेक्टिव कि यार मुझे करंट लाइबिलिटी का या मुझे डेटर का, मुझे क्रूड लाइबिलिटीज का, मुझे इन्वेंट्री का बेसिक ऑब्जेक्टिव मेरे पास क्या है, मतलब व्हाट ऑल ऑडिट ऑब्जेक्टिव आई हैव व्हाइल आई ऑडिट ईच एरिया। समझ में आया? उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर देख सकते हो कि मेरे इसमें कौन सी पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स हो सकती हैं। मे बी मेरे पास कुछ कैलकुलेटिव एरर्स हो सकती हैं, राइट। मेरे पास मेरा डिप्रिसिएशन में भी गलत हो सकता है, मेरे पास ऐसा हो सकता है कि मेरी एसेट्स बहुत ओवर वैल्यूड हो, या मेरे पास ऐसा हो लगता है कि मेरी लाइबिलिटीज बहुत अंडर वैल्यूड हो, या मेरा रेवेन्यू बहुत ज्यादा दिखा रखा है, फेक रेवेन्यू। सो दीज आर द सर्टेन पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर विच यू हैव टू थिंक, यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है। एंड आपको देखना पड़ेगा कि मेरी पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स क्या हैं, और फिर क्या करना पड़ेगा, रीजनेबली अवेलेबल जो आपके पास होंगी या जो भी आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, कीपिंग इन माइंड दिस थिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, यू हैव टू चेक दोज बेस्ट प्रैक्टिसेस। एंड आपको क्या करना है, जितने भी कोऑर्डिनेशन करके जाना है किसका, जो भी आपके रिलेटेड आइटम्स हैं उसका आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करते जाना है। मतलब कि सपोज करो अगर डेटर्स है तो डेटर्स का कोऑर्डिनेशन आई कैन डू विद द रेवेन्यू, राइट। तो कोऑर्डिनेट करो किसको, प्रोसीजर्स को टू बी अप्लाइड टू द रिलेटेड आइटम्स। तो व्हाट आर द ऑल थिंग्स दैट वी आर, देखो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7
7 है, इससे ज्यादा तो है नहीं। अब ये 7 आपको कैसे याद रखने हैं, ये आपकी क्या है, ये आपकी वो स्टेप्स हैं जो आपको देखने हैं जब यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यू प्रिपेयर द ऑडिट प्रोग्राम। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज योर स्कोप। आप अपना स्कोप देखो कि क्या है। अच्छा, आपने अपना स्कोप देख लिया, नाउ प्लीज मेक अ रिटन प्रोग्राम। ठीक है, आपने रिटन ऑडिट प्रोग्राम भी बना लिया। अच्छा, रिटन ऑडिट प्रोग्राम में कैसे स्टेप्स लिखने हैं, यू हैव टू राइट अ वेरी यूजफुल स्टेप्स भी लिखने हैं। उसके बाद आपने वो भी लिख लिया। अच्छा, आपको लगता है कि यार इसमें क्या क्या मेरे पास एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, आपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स भी डिफाइन करना है। उसके बाद आपने क्या देखना है कि मेरे पास इसमें कौन कौन से पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स आ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत ही रीजनेबल स्टेप्स या मैं भी बहुत ही आइडेंटिफाई मैं करूंगी क्या, बेस्ट प्रैक्टिसेस या बेस्ट एविडेंसेस फॉर डिराइविंग द नेसेसरी सेटिस्फैक्शन। ये भी हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपको कोऑर्डिनेशन है रिलेटेड वर्क एरिया से आपको वो करना है। समझ में आया? प्लीज रिपीट इट वंस अगेन विद मी। First is you have to define your scope. Second is you have to make a written audit program. Third is you have to apply the useful steps. ठीक है, आपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स देखना है हर एक एरिया का। उस ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स की जब आपने देख लिया, उसके बाद देखना पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स कितनी हो सकती हैं। अच्छा, वो भी देख लिया। पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स के बाद यू हैव टू चेक मेरे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस बेस्ट एविडेंसेस क्या हो सकते हैं, वो भी देख लिया। किसके लिए बेस्ट एविडेंसेस, फॉर डिराइविंग द सेटिस्फैक्शन। उसके बाद हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना है रिलेटेड आइटम्स के साथ। आर यू क्लियर नाउ? मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए इसमें लर्निंग के लिए, आपको यहीं पे आपको लर्न हो गया है। समझ में आया? फर्स्ट चीज है कि जब हम ऑडिट प्रोग्राम को लिखेंगे तो उसमें हमें क्या क्या कंसिडर करना है, दैट यू हैव टू कंसिडर कि आपका इंटरनल कंट्रोल कैसा है, प्रिलिमिनरी एवोल्यूशन कैसा है, आपका कंप्लायंस प्रोसीजर्स कहते हैं। कैन यू रिलाई ऑन टीओसी? बैंग ऑन। इफ यू कैन नॉट रिलाई, प्लीज फॉलो द डिफरेंट प्रोसीजर्स, प्लीज इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ द सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। समझ में आया? नेक्स्ट इज द व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। दिस कैन बी आस्क्ड इन द स्ट्रेट क्वेश्चन। आपको ये 4 to 5 मार्क्स आ सकते हैं कि आपको ऑडिट प्रोग्राम की क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप खुद से देखो कि आज जब आप इतना सब कुछ लिख रहे हो अपने ऑडिट प्रोग्राम में, तो अल्टीमेटली यू आर प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस टू योर असिस्टेंट्स। सो दिस इज कि आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है। क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज द कीवर्ड, राइट। एंड थर्ड में आपको पता चल जाता है कि जब आपको पता चलता है कि यार मेरे पास ये इंस्ट्रक्शंस है, मैंने पीपी का ये इंस्ट्रक्शंस लिख दिया, मैंने डेटर्स का ये लिख दिया, मैंने क्रेडिटर्स का ये लिख दिया, मैंने हर एक एरिया का इंस्ट्रक्शंस लिख दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें किसकी एक्सपर्टीज है, कौन सा असिस्टेंस मैं इसमें अप्लाई करूं, क्रेडिटर्स में किसकी एक्सपर्टीज है, लीजेस में किसकी एक्सपर्टीज है according to the instructions. So it will help in the selection of the assistants. Are you able to relate the 2 points? Help set the clear set of instructions and then उसके बाद selection of the assistants. फिर उसके बाद जब आपने देख लिया, provide a total perspective of the work to be performed for the major audits. मतलब अगर मैं अपना ऑडिट प्रोग्राम बना रही हूँ तो मुझे समझ आ जाएगा कि मेरा टोटल कितना मुझे काम करना है इस मेजर क्लाइंट पे, कितना टाइम में मेरा वो काम होगा। तो एक आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाएगा। तो टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क विदाउट अ रिटन प्रोग्राम देयर इज अ डेंजर ऑफ इग्नोरिंग और ओवरलुकिंग द थिंग्स, बिकॉज फिर आपकी वो दिमाग में रहेगी और जब आपके दिमाग में रहेगी, पेन डाउन नहीं करा होगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो स्किप हो जाएंगी। ठीक है, वर्क कैन बी ट्रैक बैक टू असिस्टेंट्स बाय साइनिंग ऑन द प्रोग्राम. Principal can track the progress of different assignments, serve as a guide for the future audit, serve as an evidence in the event of the negligence. अब इसमें देखो ये बहुत ही सिंपल है। पहला आपने क्या देखा कि हमारे पास ये क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है, किस चीज की इंस्ट्रक्शंस देता है? असिस्टेंट्स को। उसके बेसिस पे हमारा सिलेक्शन कैसा हो जाता है? इजी हो जाता है। किसका सिलेक्शन? असिस्टेंट्स का। आपको टोटल पर्सपेक्टिव देता है वर्क का टू बी परफॉर्म। अगर आपने रिटन ऑडिट प्रोग्राम करा है, इट विल हेल्प यू टू अवॉइड द ओवरलुकिंग ऑफ द एरर्स। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करते हैं, जब आपने असिस्टेंट्स को काम दे दिया तो एटलीस्ट यू कैन ट्रैक देयर वर्क। ठीक है, तो ट्रैक बैक वर्क कैन बी ट्रैक बैक टू द असिस्टेंट्स, बिकॉज हर एक प्रोग्राम पे वो साइन करते हैं। अगर आज मैंने पीपी का वर्क पेपर बनाया तो आई विल साइन दैट पीपी का वर्क पेपर एंड यू आल्सो हैव माय नेम इन योर ऑडिट प्रोग्राम। तो आप मेरी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। समझ में आया? उसके बाद आप क्या कर सकते हो? प्रिंसिपल कैन ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ डिफरेंट असाइनमेंट। जरूरी तो नहीं है ना आज की डेट में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑडिट है, मेरे पास बहुत सारे ऑडिट है, तो डिफरेंट ऑडिट्स को आप ट्रैक करो। उसके बाद फ्यूचर में अगर मेरे को इसी क्लाइंट का ऑडिट करना पड़ेगा तो आई कैन रेफर बैक टू माय ऑडिट प्रोग्राम कि अच्छा मैंने लास्ट टाइम क्या क्या चीजें लिखी थी, इज इट रेलिवेंट फॉर मी नाउ। और अगर कोई भी आपके पास नेग्लिजेंसी हो गई तो एटलीस्ट आपके पास एक एविडेंस तो है कि ये काम इसने किया था, ये इसके लिए लिखा हुआ था ये काम और इसने साइन किया था, तो ये बंदा इस चीज के लिए अकाउंटेबल है। So these are the certain advantages of the audit program. Let me help you to learn this. First of all, clear instructions. Clear instructions से क्या मिलेगा आपको? Selection of ETM.
ठीक है, आपको क्या मिल गया, टोटल पर्सपेक्टिव मिल गया, और वो रिटन ऑडिट प्रोग्राम है, तो आपकी चांसेस ऑफ इग्नोरिंग और ओवरलुकिंग दे विल रिड्यूस। आप क्या कर सकते हो, ट्रैक बैक टू मेंबर्स, प्रिंसिपल भी ट्रैक कर सकते हैं डिफरेंट असाइनमेंट्स की, गाइडेंस फॉर द फ्यूचर, एविडेंस फॉर द नेग्लिजेंसी और द चार्जेस। तो व्हाट आर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बाइफरकेट देम इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में 2 2 2 2 आ जाएंगे। समझ में आया? Now let's quickly cover the disadvantages of the audit program. So the first is कि आपका audit, ये last topic है इसका, then you can like really rest and leave the class. So the first is कि ये बहुत mechanical हो जाता है if performed without any understanding of the project. आपको पता ही नहीं है, बस आप एक audit program है, आपने बस बनाया और खत्म, आपको पता नहीं है कि मेरा objective क्या है, मेरा client किस तरीके का है, so it will become very mechanical. Sometimes it becomes very rigid or inflexible. You are not changing it according to the developments, ठीक है, so it can become very rigid. Inefficient assistance may take the shelter behind the program. मतलब वो, मतलब ऐसा होता है कि आपको, आप बहुत इनएफिशिएंट इन द सेंस कि you don't have that much kind of expertise, आपने ऐसे प्रोग्राम बना दिया, तो you are not able to take the accountability of the same too, ठीक है। तो दैट इज वाई जो इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स होते हैं वो शेल्टर ले लेते हैं, वो किसी और से करा लेते हैं, ठीक है, और फिर वो बेसिकली अपने आप को सेव कर पाते हैं बिहाइंड द प्रोग्राम। एंड हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंस की यार, मतलब अगर मेरे ऑडिट प्रोग्राम में कुछ लिखा है, मेरे पास बहुत ही कोई एक्सपीरियंस बनता है, बट आई एम नॉट लिस्निंग टू दैट पर्सन बिकॉज आई एम फाइंडिंग कि यार मेरे तो ऑडिट प्रोग्राम में यही चीज लिखी है, तो यू आर एक्चुअली किलिंग द इनिशिएटिव ऑफ दैट एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंस, ठीक है। तो उसके बाद इसमें हमारे पास क्या आएगा कि आपकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो बहुत मैकेनिकल है, रिजिड है, इनिशिएटिव किल कर रहा है, इनएफिशिएंट असिस्टेंस टेक द शेल्टर। नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेज, ये आपको कैसे कैसे एलिमिनेट हो सकती है, बहुत ही सिंपल है। आप सुपरविजन करो, अच्छा सा आप एटीट्यूड रखो, रिसेप्टिव मतलब take their opinion, take their points. Assistants may be encouraged to observe matters objectively, bring significant matters to the notice of the supervisor and the principal, right? So I hope this is the topic, at least ये topic आपको अच्छे से learn हो गया है। If you have some doubts, please put that in the comment box, and please don't forget to subscribe to my channel. Stay connected and all the very best for your exams. And in some times I will be taking the questions of the audit program from the study mat only, so please look at this lecture first and then you can easily crack those questions in मतलब within a seconds, and इसको याद करके आना नेक्स्ट टाइम जब भी आओ क्वेश्चंस करने, तो इसको याद करके आना, याद थ्रू योर हार्ट, बाय योर हार्ट, ठीक है। ये आपको नींदों में भी याद होना चाहिए, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से याद कराया है, तो मेक श्योर कि आपको ये पूरी चीजें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, राइट। So thank you so much everyone. Bye bye.